हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू लर्न बाय एक्सपर्ट। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा थर्ड सेशन है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस क्रैश कोर्स का, उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, आई हैव अ रिक्वेस्ट, आप प्लीज हमारी प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियोस जरूर देखें और उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो चलिए आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं सेशन। और दोस्तों, मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आपको पता है, जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, हमेशा ही डेंजरस होता है। अगर आप देख रहे हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और मैं आपको 100% एश्योरेंस देती हूँ कि आपको गारंटी है, आपको इससे जरूर फायदा होगा। जो हम ये कोर्स कर रहे हैं वो सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारे रूल्स हर जगह पे सेम होंगे। चाहे आप यूपीएससी लीजिए, एसएससी लीजिए, आईबीपीएस लीजिए या और कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम लेंगे, हर जगह पे यही रूल्स अप्लाई होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम इम्पोर्टेंट रूल डिस्कस करने वाले हैं, इट इज मैनी एंड मैनी, अ एंड एन। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। मैनी मीन्स a large number of. So when we want to talk about a large number of something and we are not sure about the quantity or we are not sure about the exact number, then we can definitely mention many. So if I write it down, many students, अगर मैं many students लिखती हूँ, so this itself represents that there are large number of students. I'm talking about large number of students. Although I'm not sure about the total number of students over here. I'm not sure about the exact number of students who are there, but I know there are large number of students. So another example, we can write it down. Many children. Herein, again, we are referring to large number of children. There are lot of children, but we do not know the exact number of children who are present. But I know there are large number of students. That's why we have mentioned many. अगर जब भी हमें मेंशन करना हो बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी किसी भी चीज को और हम उसके नंबर्स को नहीं जानते हैं, तब हम many का यूज कर सकते हैं। I hope आपको ये definition clear है। Let us look at the example. Example number 1, she has worked hard for many years. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, the sentence means we are talking about she. The subject is she. This particular person has worked hard for lot of years, and we have used many with years. Herein we are not sure about the number of years she has worked hard, but we know that there are a lot of years that she has worked for hard. That is the reason we have mentioned many. Now let us look at the another example. Some students will come tomorrow, many will not. कुछ बच्चे कल आएंगे और बहुत सारे नहीं आएंगे. Sometimes we use many as a pronoun as well. Herein we have used many with noun, but sometimes we also replace noun with many. If you want to look at the example over here, look at the example please. Some students will come tomorrow. कुछ बच्चे कल आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भी आएंगे. अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ many students और या फिर many लिखूं, दोनों ही चीजें, दोनों ही यहाँ पे सही फिट बैठेंगे. इसके अंदर कोई भी एरर नहीं होगा. रीजन बीइंग, यहाँ पे जो many है, मैंने उसको रिप्लेस किया है स्टूडेंट से, बहुत सारे स्टूडेंट से. अगर मैं many लिखूं या many students लिखूं, एक ही बात होती है, बिकॉज many is sometime also used as a pronoun. I really hope आपको इसका मतलब समझ में आ गया है. many मतलब a large number of something. एक important rule मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ. many is used with countable noun. countable noun का मतलब होता है जिस noun को हम count कर सकते हैं. For example, many cups. So this particular thing, many cups, represents that we are talking about large number of cups.
Although we are not sure about the total number of the exact number of cups that we have. It can be 1, 2, 3 cups, 4 cups, 5 cups, etc. Although if we do not know the total or the exact number of cups, so we can just simply write down many. Why? Because many is a quantifier. It shows the quantity. It shows there's a large number of quantity, although it doesn't specify the exact number. So that's why we have written many cups. I'll give you another example. Let's say many flights. So if we are referring to more than one flight, it can be 2 flights, 3 flights, 4 flights, 5 flights, etc. It can be any number of flights. And we do not know the exact number of flights, so we can mention many. So this itself represents a large number of flights. I really hope I am clear. Now, you generally find some questions based on many and many and. So, if I talk about many students and if I write many a student. So you must be wondering what is the difference between many and many a or an. So let me tell you everyone, it means same. Both refers the same thing. Both refers a large number of. Both refers, it specifies the countable noun. So although it doesn't specify the quantity, but it represents that we are talking about something which is bigger, which is large in quantity. Although the structure is different, so only there's a difference in the structure, rest is all same. So if I write many students or many a student, it means the same thing. In the first scenario also I'm talking about lot of students, and in the second scenario I'm again talking about lot of student, many a student. So although the format is different, so I'll show you the format. But before that, let me just make a space. Okay, so I was telling you the format. In case you would like to write on many, अगर आप many लिखना चाहते हैं, so many के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है. So ये बात हमेशा याद रखिएगा, many के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा. और जो इसके साथ वर्ब यूज होता है वो भी प्लूरल यूज होता है. सो डू नॉट फॉरगेट दिस. मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, मेनी स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट्स क्या है, नाउन, और ये एस और ईएस अगर लगा हुआ है किसी भी नाउन में तो वो प्लूरल हो जाता है. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं और ये प्लूरल नाउन है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनी अ और एन की. मेनी के साथ आप अ भी लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं, और उसके साथ हम जब भी नाउन लिखेंगे इट विल ऑलवेज बी अ सिंगुलर नाउन. Okay, do not get confused. With many we always use plural noun, but with many a and an we use singular noun. So if you want to learn, you can also see if we are using a and an, so obviously we are referring to one thing, but with the usage of many, it itself declares that there are a lot of things that we are talking about. There's something we are talking about large number of quantities. So we will be using singular noun because of the article that we have over here, a and an. And because of this, we will use singular verb. So if I would like to mention an example, it can be many a student. Right? So we have mentioned many, article, and then a singular noun. And in case we would like to use a verb with this particular phrase, then the singular verb will be used. Other examples, you can say many
an orange. So you must be aware about it if I am using an because of the noun. Herein we have mentioned many a student, and here I have mentioned many an orange. Why? Because this particular noun starts with a vowel. And when a noun starts with a vowel and it is singular and I would like to mention the article, indefinite article, then I will use an with the noun starting with a vowel. I really hope I am clear. So let us look at some of the examples in the next slide. I have been there many a times. मैं उस जगह पर बहुत बार जा चुका हूँ. So do you find any sort of error in this sentence? Let us see. I have. So the usage of have is absolutely correct with I. With I, we always use have, not has. I have been there many a times. You can see we have used many. यहाँ पे हमने many का use किया है और हमने अभी अभी structure पढ़ा था many a का. I will just write it down here. With many, if you are using an article a or an, then the noun will be singular. And verb will also be singular. So let us see here. So many a times, many a times. You can see times is plural and we are supposed to use a singular noun over here. So it will be many a time. If you look at the format, it is many a singular noun. So that is the reason we have used many a time. I really hope I am clear. Now let us see the next example. I have been there many times. So what do you think? Is this sentence correct? Alright, let me tell you. So we have also done this structure. If we are writing down many and we do not have any article after many, then the noun which will be used just after many will be a plural noun. हम many के बाद हमेशा plural noun लगाएंगे और जो भी verb use होगा वो होगा plural verb. So आइए अब हम ये structure check कर लेते हैं many times. So क्या ये correct है? एकदम करेक्ट है. सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. मेनी के बाद जो नाउन यूज हो रहा है वो हमारा प्लूरल है. सो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मेनी अ पॉलिटिशियन हैव प्रॉमिस टू मेक चेंजेस. बहुत सारे पॉलिटिशियन ने प्रॉमिस किया है कि वो चेंजेस लेकर आएंगे हमारे सिस्टम पे. सो अगर आप ये चेक करें, एक मेनी अ पॉलिटिशियन और हमारा वर्ब चेक करते हैं. सो पहले हम चेक करें मेनी अ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है. आई एम रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन. So let us continue. Okay. So many a के साथ सिंगुलर नाउन आता है जैसे मैंने आपको बताया था. सो यहाँ पे क्या है? पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियंस नहीं है. तो हमने सिंगुलर नाउन यूज किया तो यानी ये फ्रेज एकदम करेक्ट है. हमने एक और चीज पढ़ी थी, मेनी अ सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव है. सो वी हैव यूज्ड हैव, सो विच इज अ प्लूरल वर्ब. So instead of have, we should be using has. Why? Because we use a singular verb with this particular format. So now, अब हम next sentence देखते हैं. Many politicians has promised to make changes. हम इसमें subject देखते हैं. Subject हमारा क्या है? Many politicians. तो मैंने आपको पहले भी बताया था many के साथ हम जो noun use कर रहे हैं वो plural आना चाहिए और यहाँ पे प्लूरल नाउन ही है, मेनी पॉलिटिशियंस है, राइट. और इसके साथ जो हमारा वर्ब आएगा इट शुड आल्सो बी प्लूरल. पर यहाँ पे हमारा जो वर्ब है हैज विच इज सिंगुलर, तो ये हैज का यूजेज एकदम गलत है. इसकी जगह हमें यूज करना चाहिए हैव. सो अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है मेनी और मेनी अ और एन का क्या डिफरेंस होता है. सो देयर इज नो पर्टिकुलर डिफरेंस इन द मीनिंग, बट येस देयर इज अ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. All right. Now let us look at the last sentence. A good many boys are participating in the coming tournament. So let me tell you, अगर many की जगह पर
मैं लिख देती हूँ अ गुड मैनी, या फिर मैं लिख देती हूँ अ ग्रेट मैनी। इन तीनों का मतलब भी सेम होता है और इन तीनों में स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पर है, प्लूरल नाउन यूज होगा और प्लूरल वर्ब यूज होगा। सो अगर मैं ये सेंटेंस देखती हूँ दोबारा से, अ गुड मेनी बॉयज आर पार्टिसिपेटिंग इन द कमिंग टूर्नामेंट। अ गुड मेनी बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं नाउन प्लूरल यूज हुआ है, सो एकदम करेक्ट है। और अगर हम वर्ब देखें, वर्ब भी हमारा प्लूरल यूज हुआ है विच इज आर, वो भी एकदम करेक्ट है। सो यानी ये सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़े। अब हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये आईबीपीएस में आ चुका है क्वेश्चन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2009 के एग्जाम में आया था। सो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। The government has launched many creative schemes to make banking services available to everyone. गवर्नमेंट ने बहुत सारी क्रिएटिव स्कीम्स निकाली है बैंकिंग सर्विसेज को हर एक को अवेलेबल कराने के लिए, हर एक के पास बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल हो, इसलिए सरकार ने बहुत सारी क्रिएटिव स्कीम्स निकाली हैं। अब आप देख सकते हैं, हियर इन द सब्जेक्ट इज द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट हैज, सो गवर्नमेंट सिंगुलर है, इसलिए हमारा जो वर्ब यूज हुआ है वो भी सिंगुलर है हैज, सो ये एकदम करेक्ट है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेनी क्रिएटिव स्कीम्स, अभी हमने पढ़ा था मेनी के साथ हम क्या यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन। सो इफ आई लुक एट द स्ट्रक्चर, मेनी creative scheme is the noun, so scheme is singular over here, so instead we have to use schemes to make it plural. Why? Because the correct structure is many plus plural noun. So जैसे ही हम यहाँ पे schemes कर देंगे, ये sentence एकदम correct हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। The number of students competing in government funded event have fallen by 10% because of the low prize money. So before we look at this, before we solve this particular question, let me explain you the rule in the next slide. So this is the important rule which I would like to explain you. If I'm saying many, a great many, good many, a number of, a lot of, lots of, it means one and the it has the same meaning and the structure will also be same. So इसका मतलब same है, a large number of यानी बहुत सारे, और इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, यानी जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा और प्लूरल नाउन के कारण हम यहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे दैट विल ऑल्सो बी अ प्लूरल वर्ब। अगर मैं लिखती हूँ मेनी स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखती हूँ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, इसका मतलब भी सेम है। मैं ये भी लिख सकती हूँ अ गुड मेनी स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, सबका मतलब सेम है और सबके साथ नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल होगा। एक चीज मैं और स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, ऑफ के बाद ये दिस इज अ यूनिवर्सल रूल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट आफ्टर ऑफ वी ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन। इफ देयर इज अ नाउन आफ्टर ऑफ, ऑफ के बाद अगर नाउन है इट विल ऑलवेज बी प्लूरल। सो ये इजी है याद करना। चलिए अब मैं आपको एक और रूल बताना चाहती हूँ। हमने लास्ट सेंटेंस में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, इस रूल में हमने बात करी अ नंबर ऑफ की, बट बहुत सारे सेंटेंसेस में हम बहुत जगह पे द नंबर ऑफ भी यूज करते हैं। सो आप यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, क्योंकि आप देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर एकदम अलग है। नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब में डिफरेंस आ जाता है। सो मैं आपको बताती हूँ क्यों। जब भी हम कोई स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल है। सो अगर हम किसी सेंटेंस में किसी भी डेफिनेट चीज की बात कर रहे होते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ, इफ आई राइट डाउन अ सेंटेंस, आप केयरफुली सेंटेंस को जरूर देखिएगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग in the garden
is 10। और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, a number of children playing in the garden। अगर आप दोनों सेंटेंस में देखें, मतलब सेम ही बता रहा है कि बहुत सारे बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, और यहाँ पे भी ये बता रहा है कि बहुत सारे बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आई हैव स्पेसिफाइड द क्वांटिटी, सो इट इज डेफिनेट। सो व्हेन वी हैव अ डेफिनेट क्वांटिटी, वी आर श्योर अबाउट द नंबर, देन वी यूज द नंबर ऑफ। And when we use the number of, then we are talking about one particular phrase। इसलिए जो इसके साथ verb use होता है वो हमेशा singular verb use होता है। That is the reason I have used is over here, not are। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे the number of children, children क्या है यहाँ पे plural है, which is absolutely correct, जो हमें plural noun ही use करना है। और यही अगर मैं बात करती हूँ जहां पे मैं नंबर को लेकर श्योर नहीं हूं, तब मैंने क्या मेंशन कर दिया, अ नंबर ऑफ। सो जिस भी सेंटेंस में अगर आप अ नंबर ऑफ देखते हैं, एक चीज जरूर चेक करिएगा कि उसके बाद आने वाला इमीडिएट नाउन प्लूरल होना चाहिए, और इफ देयर इज अ वर्ब, वो हमेशा यूज होगा प्लूरल वर्ब। ऑलराइट। सो अब हम वापस उस क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज नाउ यू आर अवेयर अबाउट द कंसेप्ट एंड द रूल। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी हमारे बैंक में आ चुका है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है। सो अब अगर हम सब्जेक्ट में ही देखें, देयर इज अ एरर। मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, और तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वी शुड बी यूजिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट गलत है। competing in the government funded event have fallen by 10%। now you can see a definite number is mentioned. I am sure about the definite quantity, so probably this is the reason why we have used the number of, right? And if you look at the verb यहाँ पे क्या है, verb है have। क्या वर्ब करेक्ट है जो हमने रूल किया था? मैंने आपको रूल में बताया था द नंबर ऑफ के साथ हमेशा क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब। तो यानी इस सेंटेंस में क्या यूज होने वाला है, हैज यूज होने वाला है, हैव नहीं होगा। हैव इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, यहाँ पे जो उसका यूसेज है वो इनकरेक्ट है। सो इंस्टेड ऑफ हैव वी विल बी यूजिंग हैज। सो आई रियली होप आई एम क्लियर विद द कंसेप्ट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। So we have discussed many, we have discussed a lot of, lots of, a large number of, a number of, और a great many, a good many, और सबके साथ रूल एकदम सेम है। सिमिलरली एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं आपको बताना चाहती हूँ, इफ यू सी a sentence having more than one, specifying more than one, that means I'm talking about more than, I'm talking about a room, but which is more than one. It can be 2, it can be 3, 4, 5, 6, 7, or more than that. I'm not again sure about the number, but I know that it is more than one. So herein the format will be, the rule is more than one, और यहाँ पे जो नाउन मेंशन होगा इट विल बी सिंगुलर। वाई? बिकॉज यहाँ पे वन है ना, तो इसी कारण हम यहाँ पे जो नाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर होता है, और जो वर्ब यूज होता है दैट इज ऑल्सो सिंगुलर। सो नाउ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस। मोर देन वन मीन्स something which is more than one, so it specifies plural, but because we are using one, so the noun will be singular and the verb will also be singular. So if you look at the sentence, more than one room are occupied, so what do you think, is this sentence right or wrong? So this is wrong, because just now I have said with more than one we use singular verb. So अगर आप इस sentence में देखें, we have a verb called are, and are is plural, or instead of are we should be using is, singular verb, right? So I hope I'm clear. Moving on. Now another important rule, which is again a lot of question come from this particular rule.
So let me explain you. And this rule is very interesting. Herein, we are talking about either or, neither nor, not only but also. So, either or means if there are two options, if we are referring either or, that means I'm selecting either option 1 or 2. So, I can also select option 1 or 2. So, I have to select one of the two options. So, either or means one of the two. Neither nor means if I've got two options, so I am not selecting any of the option. So we shouldn't be saying any because we are referring to two things, and I am not selecting option 1, I'm not even selecting option 2. So that means none of the two. All right. So let me give you an example. If I say either Ram or Sham, हाँ, जैसे ही मैं बोलती हूँ इधर राम और श्याम, इसका मतलब या तो राम या तो श्याम, मैं दोनों नहीं बोल सकती हूँ बिकॉज यहाँ पे और आता है. एंड ईदर अगर यूज कर रहे हैं एंड आई एम गिविंग टू ऑप्शंस, सो ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू यूज और. मैं नहीं लिख सकती ईदर राम एंड श्याम, दिस दैट विल बी रॉन्ग. सो मुझे क्या लिखना होगा, ईदर राम और श्याम. और सिमिलरली अगर मैं लिखती हूँ नीदर राम नॉर श्याम, सो मैं बता रही हूं ना ही राम ना ही श्याम, दैट मीन्स नन ऑफ द टू. हाँ, चलिए अब हम थर्ड की अगर बात करें, नॉट ओनली बट ऑल्सो. सो अगर मैं लिखती हूं नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, सो खाली राम ही नहीं बल्कि श्याम भी, यहाँ पे मैं दोनों को इंक्लूड कर रही हूँ. सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया. ईदर और का मतलब दोनों में से एक ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2. दो सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट में अगर दो मेंशन है तो कोई भी एक. नीदर नॉर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं. हाँ, सो ईदर और नीदर नॉर हम तब यूज करते हैं जब दो होते हैं सब्जेक्ट, किसी भी दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं. जब मैं बोलती हूँ नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब मैं दोनों को इंक्लूड कर रही हूँ. बट इंक्लूड करने का आप तरीका देख रहे हैं, राम ही नहीं बल्कि श्याम भी. इस तरीके से हम इसको हिंदी में बोलते हैं. सो ये हमेशा दो सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है. ऐसे केस में आप हमेशा याद रखेंगे जो भी वर्ब यूज होता है इट विल बी यूज अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द S2 यानी सेकंड सब्जेक्ट. सो लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू द एग्जांपल. Neither Ram nor his children has come to the party. Okay, so this is a sentence. We need to find out the error in this sentence. So neither Ram nor his children is the subject. So यहाँ मैं बात कर रही हूँ ना ही राम ना ही उनके बच्चे. हाँ, सो ये जो सब्जेक्ट है राम, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है. लेकिन हिज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो ये क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है. और हमारा रूल कहता है ऐसे सेंटेंसेस में जहां पे नीदर नॉर यूज हुआ है, वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल, सॉरी वर्ब यूज होगा हमारा सेकंड सब्जेक्ट में. सो ये हमारा सब्जेक्ट 1 है और ये हमारा सब्जेक्ट 2 है. सो हमारा जो वर्ब होना चाहिए इट शुड बी अकॉर्डिंग टू S2 यानी सब्जेक्ट 2. और सब्जेक्ट सब्जेक्ट 2 हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे हैज ना आके हैव आ जाएगा. सो करेक्ट सेंटेंस होगा नीदर राम नॉर हिज चिल्ड्रन हैव कम टू द पार्टी. नेक्स्ट सेंटेंस चेक करते हैं. नीदर एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी नॉर द चेयरमैन वर प्रेजेंट फॉर द एनुअल मीटिंग. यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे वी हैव यूज्ड नीदर नॉर. और हमारे जो दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है उनमें से एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, चेयरमैन. सो वर्ब शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द S2 यानी सेकंड सब्जेक्ट. और ये जो चेयरमैन है ये सिंगुलर है. अगर मैं लिखती चेयरमैन तो ये क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता है ना. और यहाँ पे क्या है, चेयरमैन, इसलिए क्या है ये सिंगुलर. तो वर्ब क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए. वर्ब का यूजेज एकदम इनकरेक्ट है यहाँ पे. चलिए आगे बढ़े. अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं.
Not only Sham but also his friends is going to attend the party. ना ही शाम, ना कि शाम, बल्कि शाम के साथ साथ उसके दोस्त भी जा रहे हैं पार्टी अटेंड करने। सो आपने स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात हो रही है। कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है, इस सेंटेंस की जगह ये भी लिखा हुआ आ सकता था, नॉट ओनली शाम एंड ऑल्सो हिज फ्रेंड इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। अगर ऐसा सेंटेंस होता तो वो एकदम इनकरेक्ट होता। जहां पे भी आप यूसेज देखेंगे नॉट ओनली का, याद रखिएगा उस सेंटेंस में बट ऑल्सो का यूज भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हम अगर बात करें, पहला सब्जेक्ट है शाम और दूसरा सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। और हमने जो रूल पढ़ा था उसमें कहा था जो वर्ब यूज होगा वो यूज होगा अकॉर्डिंग टू दी सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट हमारा हिज फ्रेंड्स है जो कि प्लूरल है। सो हमारा जो वर्ब होना चाहिए वो भी होना चाहिए आर, क्योंकि आर क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। My friend will not only receive you at the station and also have you as a guest in his house। जो मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस में मेंशन कर रही थी, ये बहुत कॉमन एरर आता है एग्जाम में कि नॉट ओनली के साथ एंड ऑल्सो लगा दिया जाता है। तो जब भी आप ऐसा देखें आप समझ जाइए आपका एरर कहाँ पर है। सो यहाँ पे हमारा जो एरर है ये आना चाहिए बट ऑल्सो। ठीक है। सो आपको आई होप ये क्लियर है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। सो आप समझ पा रहे हैं कि इसका यूजेज और भी वर्ब के अलावा भी यूज हो सकता है कि ऐसे तरीके के एरर आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। सो आज के सेशन में इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में वी विल बी कवरिंग अदर रूल्स। So probably that will be the last session of this particular topic, and afterwards we'll be continuing the crash course. So I really request you to watch the whole series ताकि आपको सब चीज़ें easily समझ में आ जाए, और मैं एग्जाम की क्वेश्चंस भी कवर कर रही हूँ, so that will be very easy for you. So if you like this particular session, I request you to like, share and subscribe our channel. और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, सो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां से आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो thank you so much for watching this video.